Hello all of you. So as you know that we have already started with the sixth module of your subject Machine Design 1. In that we have covered design of leaf spring. Today we will start with the design of helical spring. Now you might have seen these kind of springs in various applications. Best example is the writing pen, पिन पॉइंट पेन जो होता है जहाँ पे अंदर आप देखोगे तो स्प्रिंग बॉन्डेड रहता है, देन टॉयज में स्प्रिंग रहता है, देन टू व्हीलर्स में आपने देखा होगा शॉक ऑब्जर्वर में स्प्रिंग होता है. तो जो स्प्रिंग है वो हेलिकल स्प्रिंग है एंड इन जनरल वे इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. वायर कॉइल होता है, उसे वाउंड किया गया रहता है. ओके, नाउ दैट वायर कॉइल इज मेड अप ऑफ diameter, so that diameter is small d. So small d is the diameter of wire coil and we can see that इसका यहाँ से लेके यहाँ तक mean diameter होगा. So that mean coil diameter is capital D. So small d is the wire diameter, capital D is the mean coil diameter. No need to refer these drawings and all, just I am giving you an idea about the terms. Then there is one term called as a spring index which is being designated with the symbol C. So spring index is the ratio of mean coil diameter to wire diameter, which is written as capital D by small d. So you can use this formula. Spring index is equal to capital D by small d. Then try to remember this relation. Ks is equal to Kc into Ksh, where Ks is the wall constant, Kc is the curvature factor, and Ksh is the shear stress factor. So this is the standard relation. Ks is equal to Kc into Ksh. Now that Ks is directly given by the standard relation 4c minus 1 upon 4c minus 4 plus 0.615 by c, where c is the spring index जो मैंने आपको already बताया, which is given by the ratio of capital D by small d. Now there are the few terms which you should know in the form of definition, which is called as a terminology for helical spring. So first is the solid length. So this is solid length. Symbolically it is given by Ls. Now if you see any spring, you will find that spring अगर विदाउट लोड कंडीशन में इस तरह है और अगर आपने इसके ऊपर लोड लगाया तो स्प्रिंग के सारे कॉइल्स कॉम्प्रेस हो जाते हैं और हर एक कॉइल एक दूसरे को टच हो जाते हैं. So this is called as a solid length. This is called as solid length. So when spring is compressed until touches each other, then length of spring is called as a solid length. And there is one more term called as free length. So this is free length, that is length of spring without loading condition. So the length of spring in a free or unloaded condition is called as a free length of spring. Now the next term is spring stiffness. Someone can say spring constant or spring rate, which is symbolically written in your PhD as a small q. So spring stiffness is defined as the load required per unit deflection of spring, which can be written as small q is equal to load required upon deflection, and formulaically it is written as F upon delta, where delta is the deflection required per unit load condition. Okay. Now pitch is the axial distance between two adjacent points when spring is in uncompressed condition. Pitch is the axial distance between adjacent points when spring is in uncompressed condition. Then as I have already explained you about the spring index, which is given as the ratio of mean coil diameter
to wire diameter, that is capital D by small d. Now make a note of one thing. When spring is subjected to fluctuating load, so such member is having factor of safety in the range of 1.5 to 2. ये याद रखना हमेशा, कभी भी किसी भी फ्लक्चुएटिंग लोड कंडीशन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूजुअली टेकन फ्रॉम 1.2 to 2. नाउ अगर हेलिकल स्प्रिंग है और वो क्लोज कॉइल स्प्रिंग है, सी क्लोज कॉइल स्प्रिंग, सो हेलिकल स्प्रिंग और क्लोज कॉइल है तो उसका हेलिक्स एंगल लेस देन 10 डिग्री होता है, और अगर हेलिक्स एंगल इज मोर देन 10 डिग्री देन इट इज कंसिडर्ड एज अ ओपन कॉइल स्प्रिंग. So make a note of three things which I have told you right now. First, when the member is subjected to fluctuating loads, that time factor of safety should be taken from 1.5 to 2. Then for closed coil helical spring, helix angle should be less than 10 degree. And for open coil helical spring, helix angle should be more than 10 degree. So with that note, I would like to start with the numerical. So I'm just reading the statement for a better understanding. So a closed coil helical spring is subjected to a load varying from 400 Newton to 1200 Newton. So एक closed coil helical spring है. नो यहाँ पे देखो closed coil बोल दिया है पहले से, तो इस केस में हेलिक्स एंगल जो होगा वो लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर लोड वैरी हो रहा है. सो 400 न्यूटन से लेके 1200 न्यूटन तक का लोड अप्लाई हो रहा है, और उस लोड की जो फ्रीक्वेंसी वो 15 साइकिल्स पर सेकेंड है, मतलब पर सेकेंड में 15 साइकिल्स लोड वेरिएशनल वे में अप्लाई हो रहा है, और स्प्रिंग स्टिफनेस आपको 25 न्यूटन पर mm लेने बोला गया है, और स्प्रिंग का जो मटेरियल है, वायर मटेरियल जो है, उसके स्ट्रेस वैल्यूज आपको दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो. So SU is equal to 1735 upon DW raised to 0.1, where DW stands for wire diameter. मतलब जो आपको वायर स्प्रिंग के लिए लेना है तो उस वायर का मटेरियल का स्ट्रेस वैल्यूज दिया गया है, बट वो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ वायर दिया गया है. सेम वे SYS is 875 upon DW raised to 0.1. SNO is equal to 550 upon DW raised to 0.15, and all will give you the answer in Newton per mm square. Now we are supposed to make a suitable assumptions and design the spring for considering fatigue condition. We are supposed to make a proportionate sketch or dimensional sketch, and we have to check for the natural frequency of vibration also. Now I would like to compare the given things with the design data book so that you can get a clear idea. For example, यहाँ पे इन्होंने आपको SU करके दिया है, तो SU लिखो या सिग्मा U लिखो, इट मीन्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि PSC में शायद आपको सिग्मा U लिखा हुआ दिखेगा, वहाँ पे SU लिखा हुआ नहीं दिखेगा, तो यू विल गेट कंफ्यूज. सेम वे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे SYS लिख के दिया है, आप SYS लिखो या टाउ Y लिखो, इट इज हैविंग सेम मीनिंग विच इज नथिंग बट टॉर्शनल यील्ड स्ट्रेस. फिर आपको SNO करके दिया गया है, सो आप SNO लिखो या टाउ O लिखो, एक ही मीनिंग है, और उसे हम बोलते हैं इंड्योरेंस shear strength, and capital G is modulus of rigidity which we are going to use. Now I request you to please be seated with your PSC design data book, okay, so that you will understand each and everything. So as you can see that हमें क्वेश्चन में मिनिमम लोड जो अप्लाई करना है 400 न्यूटन दिया है, मैक्सिमम लोड जो अप्लाई हो रहा है वो 1200 न्यूटन दिया है. इसमें जो फ्रीक्वेंसी दी गई है लोड एप्लीकेशन की वो 15 साइकिल्स पर सेकेंड है, मतलब 15 हर्ट्ज है, और आपको स्प्रिंग रेट और स्टिफनेस दिया गया है 25 न्यूटन पर mm, और आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दी गई है 80,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ विद दिस सी ये फ्लक्चुएटिंग लोड कंडीशन के ऊपर डिजाइन हो रहा है, तो हमने मॉड्यूल 4 में ऑलरेडी फ्लक्चुएटिंग लोड्स के बारे में पढ़ा है. फॉर एग्जांपल
amplitude load will be equal to maximum load minus minimum load by 2. So maximum load is 1200, minimum load is 400. So that will become 1200 minus 400 by 2, which comes 400 Newton. Then mean load is maximum load plus minimum load by 2. So maximum is 1200, minimum is 400 by 2 is equal to 800. So ये हमने पहले फाइंड कर लिया. अब आगे क्या करना है वो देखते हैं. देखो इस क्वेश्चन में हमें स्प्रिंग इंडेक्स वैल्यू मेंशन नहीं किया गया है. ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग इंडेक्स वैल्यू दिया नहीं गया है. मैक्सिमम टाइम्स इन न्यूमेरिकल दे गिव स्प्रिंग इंडेक्स वैल्यू, but in this question they have not given you the spring index value. So I always recommend go for the industrial standard. So if spring index value is not given, so take it as a 6. Take spring index value as 6. And we know that wall stress factor का ये formula होता है, which is 4c minus 1 upon 4c minus 4 plus 0.615 by c. और ये same formula आपको PSG 7.100 that is 7.100 पे आपको mention किया हुआ मिल जाएगा. If you are having PSG, please open that page 7.100. You will find this. Okay. Now, if you substitute the value of C is equal to 6 in this formula, you will get Ks value 1.2525. Then we have Kc, which is called as a curvature factor. Now I recommend you to go to PSG 7.102. Please open PSG 7.102. Okay. So as you can see on 7.102, there is one table. That table is for spring index and curvature factor. That is spring index C and curvature factor Kc. So उस टेबल में देखो, अगर C का वैल्यू 6 है तो Kc का वैल्यू 1.15 है. You can check it. Clear? Okay, good. So Kc is equal to 1.15. आपको PSG और 7.102 से मिल जाएगा. Now, while explanation of theory, I have shown you this relation that Ks is equal to Kc into Ksh. So you got Ks value over here and Kc value over here. Substitute both the values over there. So you will get Ksh, which comes 1.089130. Okay. Once you get these all three constants, I recommend you to then use PSG smartly and no need to get worried now because everything is in PSG. So please open page 7.102. Now on 7.102 on top side you will find this amplitude shear stress formula 8 Ks Pa into C by pi d square. Okay. Now in that formula we need Ks, so we got Ks value 1.2525. So you can see here it is being substituted here. Then Pa value we got 400, that is amplitude load. C value is 6 pi d square. So d is the diameter of wire. So as we are unaware of diameter of wire, so get the value of amplitude shear stress in terms of diameter of wire. Then on same page 7.102 you will get mean shear stress formula. So in mean shear stress formula you will find here they are using KSH. So that value we already got 1.0891. PM is the mean load which we already got 800 Newton. C is 6 which we have assumed. Again you can find that here the diameter of wire is not known to you. So this will be 13.31 into 10 raised to 3 upon d square. So आप कैल्सियम अगर करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा. अब अगर आप PSG 7.102 पे ही देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक फॉर्मूला है. प्लीज सी दैट फॉर्मूला इन योर PSG 7.102. 1 upon n is equal to tau m minus tau a upon tau y plus 2 tau a upon tau o.
Now if you see that n stands for factor of safety, tau m आपको जस्ट अभी प्रीवियस स्टेप में यहाँ पे मिला है और टाउ ए आपको यहाँ पर मिला है। सो वो टाउ एम एंड टाउ ए हम यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। रहा बात टाउ ओ एंड टाउ वाई का, सो आपको क्वेश्चन में ही टाउ ओ एंड टाउ वाई दिया गया है। यू कैन सी हियर टाउ ओ मतलब SNO, तो दिस इज योर टाउ ओ वैल्यू एंड टाउ वाई मतलब SYS, सो दिस इज टाउ वाई वैल्यू। तो ये वैल्यूज आपको दी गई है क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ वायर, तो ये वैल्यू उठा के हम वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। सो आपको ये पूरा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ दो वैल्यूज मिल जाएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड में FOS है और राइट हैंड साइड में डायमीटर ऑफ वायर है। ओके, नाउ if you simplify these things you will reach to one stage. Let's say this is the stage, यहाँ पे आपको दोनों अननोन दिख रहे हैं। अब ये स्टेप को डील करने का दो तरीका है। तरीका नंबर 1, एज आई टोल्ड यू फ्लक्चुएटिंग लोड कंडीशन में n का वैल्यू 1.5 से 2 के बीच में होता है। ओके, सो यू कैन अज्यूम n in between these two value 1.5 to 2. सो लेट्स से मैंने 1.75 लिया, ये वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे सॉरी, सो मुझे डायमीटर ऑफ वायर इजीली मिल जाएगा। ये तरीका नंबर 1 है। तरीका नंबर 2 कुछ इस तरह है कि हम ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे। सो हम ट्रायल एंड एरर मेथड के अकॉर्डिंग पहले डायमीटर ऑफ वायर 6 mm डालेंगे और ये डायमीटर ऑफ वायर डाल के हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक करेंगे। तो देखो मैंने डायमीटर ऑफ वायर 6 mm से स्टार्ट किया and for that corresponding factor of safety I got 0.81, but our factor of safety should lie in between 1.5 to 2, means this diameter is not acceptable, rejected. So next range पे गया तो मैंने diameter 7 mm डाला, यहाँ पे factor of safety 0.92 मिला which is not in the range, rejected. फिर मैंने next diameter 9 mm डाला, that time I got factor of safety 1.732 which is in the range, so this configuration is accepted. So मैंने जैसे कि आपको बताया दो तरीका है, इट्स अप टू यू आपको क्या डील करना है। पहला तरीका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से लेके 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करो, डायमीटर ऑफ वायर फाइंड कर लो। तरीका नंबर 2, डायमीटर का डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू ऑब्टेन करो एंड चेक करो कि वो विद इन रेंज आता है कि नहीं आता है। सो इट्स योर चॉइस, आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन में मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड यूज किया है, जहाँ पे मैंने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डायमीटर सब्स्टिट्यूट किए हैं एंड अकॉर्डिंगली मैंने चेक किया है कि कौन सा डायमीटर मेरे लिए सक्सेसफुली यूज होगा। सो यहाँ पे फाइनलाइज जो हुआ वो हुआ स्मॉल d 9 mm, क्योंकि उस टाइम पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद इन रेंज आया। सो वी नो दैट c इज इक्वल टू कैपिटल D बाई स्मॉल d। c का वैल्यू आपने 6 एज्यूम किया था ऑलरेडी एंड स्मॉल d आपको 9 mm मिला है। So in this way capital D you will get 54 mm. Once you get capital D, then we have to determine the number of active turns. Now I request you to please go to PSG 7.100. So small q is equal to GD by 8CQN. So that small q is the spring stiffness 25 given to you. G is 80,000, small d is 9, 8C is 6 and n is unknown. So यहाँ से आपको नंबर ऑफ टर्न 16.16 मिलेगा, उसको मैंने राउंड अप कर दिया है 17 पे। सो अब ये नंबर ऑफ टर्न 17 हो गए। तो बट ये जो 17 है ये एक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, क्योंकि स्प्रिंग अगर हम यूज करते हैं तो स्प्रिंग के टॉप पे हमें सपोर्ट रखना पड़ता है और स्प्रिंग के बॉटम पे भी हमें सपोर्ट वाइंडिंग बनाना पड़ता है, मतलब एक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स से भी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बनाने पड़ते हैं। तो कितने टर्न्स बनाने हैं उसको हम ध्यान में रखेंगे। सो वी विल गो टू PSG 7.101. प्लीज गो टू PSG 7.101. there you can check for one table
In that table they have given you the different conditions. So I recommend you to use the condition square and ground end. I recommend you to use the condition square and ground end conditions. Okay. Now when you use that condition, you will find that वहाँ पे आपको नंबर ऑफ एक्चुअल टर्न्स का n+2 वैल्यू दिया गया है. So n dash is equal to n+2. So your small n is 17, which you got earlier, plus 2 from the table. So this value will become 19. So total number of actual coils are 19. Out of that 17 are active coils. ओके. सो कैसे निकालना है मैंने बताया. PSG 7.101 पे जाके आपको टेबल में स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड कंडीशन एज्यूम करनी है. इसके बाद अगर हमें पिच फाइंड करना है तो जैसे कि हमें यहाँ पे हेलिक्स एंगल दिया नहीं गया है, तो मैंने बोला एज इट इज अ क्लोज कॉइल स्प्रिंग. सो मैंने पहले ही कहा क्लोज कॉइल के लिए हेलिक्स एंगल जो होता है वो लेस देन 10 डिग्री होता है. ओके. सो हमने लेस देन 10 डिग्री बोला तो इंडस्ट्रियल थंब रूल है हेलिक्स एंगल 4 डिग्री लेने का. तो मैंने यहाँ पे आपको बोला यूज हेलिक्स एंगल एज 4 डिग्री. ओके. सो अगर हमने 4 डिग्री लिया तो tan अल्फा इज इक्वल टू पिच अपॉन पाई इंटू कैपिटल डी, where capital D is the mean coil diameter. So please remember this. Tan alpha is equal to pitch upon pi d. So alpha 4 डिग्री डालेंगे, कैपिटल D 54 ऑलरेडी मिला था, तो यहाँ से आपको स्प्रिंग का पिच भी मिल जाएगा. Now if you go to PSG 7.101, I think you are already there on that page. You have assumed square and ground end condition. So for that free length value is given, that is LF. Formula is given, that is pitch into n plus 2d. Pitch into n plus 2d. So we got pitch as 11.86, n is 17, 2 into small d is 9, so LF value 219.6 mm आ जाएगा. Then PSG 7.101 पे ही स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड कंडीशन के लिए ही हमें LS सॉलिड लेंथ का भी फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज स्मॉल dn plus 2d. So small n is 17, we know small d is 9, so accordingly we got solid length as 171 mm. Now you are supposed to check whether your design spring is sustaining the shear stress developed or not. So on 7.100 you are familiar with this formula, and we will check this for the maximum shear stress. We will check this for the maximum shear stress. So this is tau max. So tau max is equal to, ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी 7.100 पे है और वहाँ पे P के जगह पे P max डालेंगे क्योंकि आपको tau max चाहिए. तो देखो KS हमें पता है, P max 1200 है और स्मॉल d 9 mm हमें मिला है, तो हमें इंड्यूस्ड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिल जाएगा. अब ये जो इंड्यूस्ड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो डिजाइन स्ट्रेस से कम होना चाहिए. सो अगर आप PSG 7.102 खोलोगे तो वहाँ पे आपको मिडल ऑफ द पेज एक टेबल दिया गया रहेगा और वहाँ पे एवरेज सर्विस कंडीशन करके लिखा होगा. सो हम एज्यूम करेंगे कि जो हमने स्प्रिंग मटेरियल यूज किया है वो यूज हो रहा है फॉर एवरेज सर्विस कंडीशन के लिए. तो एवरेज सर्विस कंडीशन के लिए डिजाइन स्ट्रेस इज इक्वल टू 0.324 times of sigma u, which is written in PSG 0. I am writing here also 0.324 times of sigma u. This is the condition given in PSG. Now sigma u is already known to you in the question in terms of diameter of wire. So we are substituting diameter wire as a 9 mm. So design stress we got 451.25. It means that उस मटेरियल की कैपेसिटी है 451 न्यूटन पर mm स्क्वायर झेलने की और उसमें इंड्यूस्ड हो रहा है ओनली 283. So as your design stress is more than the maximum shear stress induced, therefore spring is safe for the given loading condition. Okay. Now if you are supposed to find out maximum and minimum deflection, so on PSG 7.100 you are provided with the deflection formula. Now if you are interested in finding out the maximum deflection, then this load should be P max. So you can see here
1200 डाला है, बाकी सारी वैल्यूज पता है, तो आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग मिल गया। एंड अगर आपको मिनिमम डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग चाहिए तो इसी फॉर्मूले में लोड की जगह पी मिनिमम आ जाएगा बस। सो देखो यहाँ पे लोड 400 है और यहाँ से मिनिमम डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग मिल गया। देखो हम जो कर रहे हैं ये मास्टर प्रॉब्लम है। मास्टर प्रॉब्लम इज व्हाट, वी आर फाइंडिंग एवरीथिंग। इट इज नॉट नेसेसरी कि यूनिवर्सिटी के पेपर में वो आपको सारी चीजें फाइंड करने बोलेगा। मेक अ नोट ऑफ दिस, ओके। तो जो जो चीजें हमें फाइंड करना बोलेगा हम उसी चीज को फाइंड करेंगे, ओके। सो अभी तक हम सारी चीजें फाइंड करते जा रहे हैं और जो चीजें हमें फाइंड करने बोली गई है हम उसी पे बात करेंगे, ओके, जब हमें यूनिवर्सिटी के पेपर में जो भी पूछा जाएगा। Then next, if they ask you to check for the vibration frequency, then we can find that आपको 7.101 पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला दिया गया है, यू कैन चेक इट, ठीक है। अगर पीएचडी में फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेकली गलत लिखा है तो उस टाइम पे मेक अ नोट ऑफ दिस फॉर्मूला, दिस इज द करेक्टेड फॉर्मूला रिटन ऑन योर स्क्रीन। So lowest frequency small d by pi capital D square n into under root of capital G into small g upon 8 times of nu, where small g is the gravitational constant which is 9.8 meter per second square, that we know, and specific weight of spring is nothing but nu, okay। Now if you can see आपको small d already पता है 9 mm, capital D आपको already पता है 54 mm, स्मॉल n आपको पता है 17, कैपिटल जी कुछ तो आपको 80,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया गया था, स्मॉल जी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और न्यू हमें पता नहीं है। तो अब ये न्यू पता करने के लिए हमें मटेरियल पता करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, पीएसजी 1.1 पे गया, C60 मटेरियल लिया और उस C60 मटेरियल के लिए उसका स्पेसिफिक वेट वहाँ पे मेंशन है 0.0783 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसे मैंने कन्वर्ट किया न्यूटन पर मीटर क्यूब में, बिकॉज इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज मीटर यूनिट में ही आनी चाहिए। मेक अ नोट ऑफ दिस। सो आपके पास जो भी mm में, जैसे स्मॉल डी 9 mm है तो उसको मीटर में लिया 0.09 मीटर, कैपिटल डी 54 mm है तो मीटर में लिया 0.054 मीटर, ओके। ये कैपिटल जी 80,000 न्यूटन पर एम स्क्वायर है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो गया वो 8 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो न्यू है ये पीएसजी 1.1 से C60 मटेरियल सेलेक्ट करके 0.0783 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किया 0.0783 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। ये सारी वैल्यूज उठा के हमें इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी, और यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा विच कम्स नियर अबाउट 64 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या, वो स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी जो है 64 हर्ट्ज झेलने की कैपेसिटी है, बट हम कितना फ्रीक्वेंसी से लोड अप्लाई कर रहे हैं, ओनली 15 हर्ट्ज से। सो एज दैट स्प्रिंग इज हैविंग कैपेसिटी ऑफ 64 हर्ट्ज and we are applying only 15 hertz, it means our spring is safe for the given vibration condition, okay। So make a note of this। now after that we have to check whether spring के अंदर buckling होगा कि नहीं होगा। so आप देख सकते हो PSG 7.101 पे आपको टू अवॉइड बकलिंग का ये स्टैंडर्ड रिलेशन दिया है। so this is given on PSG 7.101। so LF upon capital D should be less than 3। so LF is 219.62 and capital D is 54, which comes 4.06, which is greater than 3। so condition is not satisfied। if condition is not satisfied, what does it mean कि वो स्प्रिंग जो हमने डिजाइन किया वो बकल्ड हो जाएगा। तो बकलिंग ना हो तो क्या करेंगे,
स्प्रिंग शुड बी सुटेबली गाइडेड, मतलब अगर ये स्प्रिंग है तो इसके अंदर से हम एक सिलेंड्रिकल रॉड इंसर्ट करेंगे सो दैट स्प्रिंग बकलिंग नहीं होगा। जैसे कि आपने बाइक के शॉक एब्जॉर्बर में देखा होगा, स्प्रिंग के सेंटर से एक सिलेंड्रिकल रॉड गई रहती है जिससे कि आपकी स्प्रिंग बकलिंग नहीं होती है। एम आई क्लियर? So in this way you can see that we have covered the master problem based on the helical spring. I have covered each and every parameter required to solve this numerical. Now I would like to go for the next question. Okay, so let me read the statement because scanning is not done properly and due to old pages such things are happening. So uh, I really I'm really sorry for that, but let it be. I am reading this statement for you. So a helical compression spring is subjected to a load varying from 0 to maximum 9 kilonewton. तो यहाँ पे minimum load 0 है and maximum load 9 kilonewton है with a corresponding deflection of 90 mm. Spring का deflection 90 mm है. Consider the average service and a spring of steel हैविंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ. तो आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया गया है 2000 अपॉन डी रेज टू 0.16 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. कैपिटल जी इज 80,000 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. वी आर सपोज टू फाइंड आउट वायर डायमीटर एंड कॉइल डायमीटर, that is small d and capital D, total number of the coils, that is n dash, free length, pitch and helix angle. Now make a note of that. पहले न्यूमेरिकल में हेलिक्स एंगल हमने एज्यूम किया था बट यहाँ पे हमें हेलिक्स एंगल फाइंड करना है, तो इसमें फर्क है. ठीक है, सो हम यहाँ पे हेलिक्स एंगल फाइंड करके बताएंगे एंड देन चेक फॉर द सॉलिड स्ट्रेस. सो सी हियर दे हैव गिवन यू द मिनिमम लोड 0, मैक्सिमम लोड 9 एंड डिफ्लेक्शन 90 mm. ओके, ना पहले के क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो हमें टाउ ओ टाउ वाई ये सब दिया गया था. यहाँ पे सिर्फ हमें सिग्मा यू दिया गया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया. सो टाउ ओ का स्टैंडर्ड रिलेशन होता है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. रिमेंबर, अगर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं गया है तो आपको याद रखना पड़ेगा रिलेशन 0.22 टाइम्स ऑफ सिग्मा यू. सो सिग्मा यू ऑलरेडी पता है, वो सब्स्टिट्यूट किया. अगर आपको टाउ वाई नहीं दिया गया है, एस वाई एस और टाउ वाई, तो उसका रिलेशन ये स्टैंडर्ड है 0.45 टाइम्स ऑफ सिग्मा यू. तो ये भी आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. सो दोनों क्वेश्चन में फर्क समझा. पहले आपको सारी स्ट्रेस वैल्यू दी गई थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रेस वैल्यू दी गई है, तो बाकी के दो स्ट्रेस वैल्यू हमने रिलेशन से ऑब्टेन किए. नाउ सेम एज द प्रीवियस वन, एम्पलीट्यूड लोड दिस फॉर्मूला we got amplitude load, mean load this formula we got mean load. Again in this question spring index is not given to you, so we have assumed spring index as 6. Ks, that is Wahl's factor, is given by this formula. Substitute the value of C. ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी PSG 7.100 पे अवेलेबल है, तो यहाँ से आपको KS मिल गया. 7.102 पे टेबल है. C की 6 के लिए KC वैल्यू 1.15 है, सेम एज प्रीवियस न्यूमेरिकल. उसके बाद वंस यू गेट KC, KS इज इक्वल टू KSH इंटू KC एंड ये दोनों वैल्यू 1.2525 एंड 1.15 डालने पे KSH आपको मिल गया. देखो जैसा प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था सेम वैसे ही चल रहा है. फिर 7.102 पे जाके टाउ ए का ये फॉर्मूला, सारी वैल्यूज पता है, सब्स्टिट्यूट किया, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर आंसर आ गया. टाउ एम का वो फॉर्मूला जो आपको दिया है 7.102 पे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर वैल्यू निकालो जैसे पहले न्यूमेरिकल में हमने निकाला था. एक बार वो आने के बाद PSG 7.102 पे ही आपको ये फॉर्मूला दिया है जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था. अब हमें पहले से ही देखो, लास्ट टाइम मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड करके बताया, बट एग्जाम में हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो मैंने क्या किया, एज n लाइज इन बिटवीन 1.5 to 2, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अज्यूम कर दिया n का वैल्यू 1.5. मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में भी बताया. तो यहाँ पे 1.5 अज्यूम करके वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. पूरे में एक ही अननोन है, डायमीटर ऑफ वायर, जो कि मुझे मिल गया. सो डायमीटर ऑफ वायर कम्स 31.41 mm, which is being rounded up to the 32 mm. So in this way we got diameter of wire. Then
वी नो दैट कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये वैल्यू 6 है, ठीक है, एंड कैपिटल D अननोन है और स्मॉल d आपको 32 मिला, तो नाउ यू विल गेट कैपिटल D का वैल्यू 192 mm। तो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। पहले के क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिया नहीं गया था, बट यहाँ पे दिया है। तो स्प्रिंग स्टिफनेस कैन बी ऑब्टेन, क्योंकि पहले आपको स्प्रिंग स्टिफनेस पहले से ही दिया था प्रीवियस न्यूमेरिकल में। यहाँ पे स्प्रिंग स्टिफनेस नहीं दिया बट डिफ्लेक्शन दिया। तो वी नो दैट स्प्रिंग स्टिफनेस इज लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, सो लोड इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सॉरी मैक्सिमम लोड, सो वो लोड है 9 किलो न्यूटन, सो दैट विल बी 9 into 10⁻³ अपॉन 90, so this come 100 Newton per mm. Once you get the value of Q, go to PSG 7.100, you will get this formula. Substitute the value, you will get the number of turns, which comes 14.81, rounded up to the 15. Okay. Then go to PSG 7.101, same as the previous one. Square and ground end condition assume करो, and total number of turns का formula आएगा n+2. Small n का value जो हमने 15 लिया था, वो value इधर डाल देंगे. So we will get n dash as 70. Okay. Now for the square and ground end condition, LS solid length is given by this formula. We know all the values, you will get solid length approximately 544 mm. But you cannot get free length currently because free length depends upon the formula of pitch, और हमें pitch अभी तक पता नहीं है। pitch हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें हेलिक्स एंगल भी पता नहीं है। प्रीवियस न्यूमेरिकल में हेलिक्स एंगल पता भी नहीं था, तो हमने हेलिक्स एंगल एज्यूम करके pitch निकाला था, तो काम आसान हो गया था। यहाँ पे हेलिक्स एंगल हमें एज्यूम नहीं करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो मान लो एक स्प्रिंग है, सॉलिड लेंथ मतलब सारे स्प्रिंग कॉइल टच होने के बाद उसका जो लेंथ आता है 544 mm आता है, जो कि आपने फाइंड किया। तो फ्री लेंथ उसका जो होना चाहिए 544 से ज्यादा ही होना चाहिए। अल्सो उसका स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन है वो 90 mm है, सो वो 90 mm डाउनवर्ड भी जा सकता है, 90 mm अपवर्ड भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग है वो सॉलिड लेंथ प्लस डिफ्लेक्शन से ज्यादा ही होना चाहिए, सॉलिड लेंथ प्लस डिफ्लेक्शन से ज्यादा होना चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है LF should be greater than 544 plus 90. So that 544 is solid length and 90 is the deflection. So LF should be 634 mm. आइडियली होना चाहिए, बट मैंने उसको 644 mm लिया है। आप उसको थोड़ा इंक्रीज करके ले सकते हो। ओके, सो फिर 7.101 पे गए जैसे हम पहले गए थे। सो LF इज इक्वल टू PN प्लस 2D का फॉर्मूला है। LF का वैल्यू 644 डालेंगे, ठीक है, ये n का वैल्यू हमें 15 मिला है एंड स्मॉल d हमें 32 मिला है। यहाँ पूरे से हमें पिच मिल जाएगा विच कम्स 38.66 mm। सो इस तरह से हमें यहाँ पे पिच फाइंड करना है। Once we get pitch, then we can use this same formula tan alpha is equal to pitch upon pi d, और यहाँ पे कैपिटल D 192 पता है, पिच हमने अभी यहाँ पे फाइंड किया था वो डालेंगे और यहाँ से हमें अल्फा मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ तक जो हमने किया वो सेम एज द प्रीवियस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। ओके, सो वी हैव टू गेट द सॉलिड स्ट्रेस। नाउ चेक फॉर द सॉलिड स्ट्रेस हमें बोला है, तो देखो क्या करना है, पहले तो आपको सॉलिड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो सॉलिड डिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट, LF प्लस LS, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रखना। जो प्रोसेस बता रहा हूँ स्टैंडर्ड है, पूरा याद रखो। पहले सॉलिड डिफ्लेक्शन निकालो, तो आपको सॉलिड डिफ्लेक्शन 100 mm मिल जाएगा। PSG 7.100 पे जाओ, Y का ये फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें अगर आपने Y सॉलिड बोला तो ये लोड सॉलिड लोड हो जाएगा। सॉलिड लोड को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सबको रीअरेंज कर दो। ओके, तो अब सारी वैल्यूज आपको पता है, वो वैल्यूज डालो, आपको सॉलिड लोड मिल जाएगा। ओके, फिर PSG 7.100 पे आपको शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है। अब अगर यहाँ पे आपने सॉलिड लिखा तो यहाँ पे लोड सॉलिड हो जाएगा। सारी वैल्यूज पता है, सब्स्टिट्यूट करो, आपको शियर स्ट्रेस सॉलिड मिल गया। ओके, PSG 7.101 पे आपको एक कंडीशन मिलेगी, टॉ सॉलिड शुड बी लेस देन 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा यू। Now permissible stress, that is 0.5 times of sigma u। sigma u आपको इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑलरेडी दिया था, डायमीटर वायर डालो, आपको
ये वैल्यू मिल गई। अब अगर आप देखोगे तो आपका टाउ सॉलिड जो है 184.5 है और 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा यू का जो वैल्यू 574 है, तो जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि टाउ सॉलिड इज लेस देन 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा यू, दैट्स व्हाई द स्प्रिंग इज सेफ इन द सॉलिड स्ट्रेस। तो ये जो सॉलिड स्ट्रेस वाला फंडा था, नया था, मैं बताता हूँ वहाँ क्या किया। पहले सॉलिड डिफ्लेक्शन निकालो, फिर डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में जाके सॉलिड लोड निकालो, वो आने के बाद टाउ के फॉर्मूले में जाके टाउ सॉलिड निकालो, 7.101 पे जाके ये रिलेशन मिलेगा। ये रिलेशन के लिए आप वैल्यूज निकालो और कंपेयर करो, अगर वो कंपेयर और रीजन में सेफ आ गया तो आपका डिजाइन सेफ है फॉर सॉलिड स्ट्रेस। सो इन दिस वे यू कैन सी दैट हमने हेलिकल स्प्रिंग के 2 क्वेश्चन किए। आपको जो मैंने नोट्स शेयर किया है ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में, तो वहाँ पे ये वाला न्यूमेरिकल भी दिखेगा जो आपको नहीं करना है, नॉट रिक्वायर्ड, ये ओल्ड सिलेबस में था, अभी तुम्हें करने की जरूरत नहीं। ओके, सो इस तरह से आप देख सकते हो हमने लीफ स्प्रिंग और हेलिकल स्प्रिंग दोनों के न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं। ओके, एंड आप इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। कहीं पे आपको कहीं डाउट आता है तो यू कैन आस्क योर डाउट ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और ऑन योर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।